جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہمارے ساتھ نصرت جاوید صاحب ہیں. بڑا ہی خوبصورت سا رنگ انہوں نے شرٹ کا پہنا ہے اور لگتا ہے کہ میرے سے میچ کرنے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے. نصرت صاحب وارم ویلکم ان شو. بڑی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. ایک سروے میرے پاس پہنچا ہے نصرت صاحب، تازہ ترین سروے. دیکھیں الیکشن کے زمانوں میں آپ نے انڈیا کے بھی بہت الیکشنز کور کیے، پاکستان کے بھی کئی الیکشن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کور کیے. الیکشن کے نزدیک جو سروے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. سر دیکھیں آخر ووٹ کاسٹ کرنا انہوں نے، میں نے، آپ نے تو نہیں کرنا، سوری سیدھے کرنا ہے نا. ہاں سو یہ جو سرویز ہوتے ہیں یہ بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں. سر اب جو تازہ ترین سروے ہے سر، اس میں آرمی کی جو مقبولیت ہے ان سب کے لیے جو ہے تماچا ہے یہ، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی عزت نہیں رہی اور ڈس رسپیکٹ ہو گیا بلا بلا. 88% لوگوں نے فوج کی مقبولیت کو ایکسیپٹ کیا، 88% ہوا ہے. دوسرا یہ جو بری خبر ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ سیاست دانوں پر عوام کا اعتماد صرف 39% ہے. اچھا، بٹ ایک اچھی خبر بھی ہے، اچھی خبر بھی. ٹھہرے آپ اور میں، ہماری جو رزق روزی جڑی ہے وہ ہے میڈیا سے، اس پر 56% اعتماد ہے. مطلب میں یہ سننے کے بعد اپنے دیکھنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں اور آپ کی سادہ لوہی کو سلام کرتا ہوں. کی مطلب خدا کا واسطہ ہمارے ہاں بہت دو نمبری ہوتی ہے. ہم اب واٹس ایپ پہ چلتے ہیں، میرے جیسے لوگ خاص طور پر جن کو گر نہیں آتا، اپنا ہنر نہیں آتا. یار اس عوام کا اعتماد ہے میڈیا پہ. میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ ہم جیسے 2 نمبر کے لوگوں پہ ابھی تک اعتبار کیے ہوئے ہیں. یار خدا کا واسطہ شکریہ تو ادا کرنے دو. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں واقعتاً جی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ہم نے بہت چکر باز ہو گئے، ہم صحافی نہیں رہے. میں نے اگرچہ ساری زندگی 75 سے سوائے صحافت کے کچھ نہیں کیا، لیکن بخدا ہم صحافی نہیں رہے. ہم کارندے بن چکے ہیں، کارندے بن چکے ہیں، کارندے بن چکے ہیں. آئیے دوسری بات، آپ ایک صرف ایک بات صحافت میں رہیے گا، آگے مت بڑھیے گا. آگے نمبر سر ایک صرف بات تھوڑی سی اب آ جائیں، صحافت کرنی ہے. آپ نے کم از کم 4 مرتبہ ڈھول بجایا ہے تازہ ترین تازہ ترین تازہ ترین. اٹس ناٹ تازہ ترین. ارے بھائی چلو آپ کے ارے سنیے یہ سننا کیا چاہتے ہیں؟ سیاستدان سننا چاہتے ہیں وہ شخص جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست چیئرمین تحریک انصاف سب سے ٹاپ پہ ہے 60% کے ساتھ. نواز شریف 36. اچھا خیر، اور دلچسپ صورتحال کیا ہے سر، شہباز شریف 35 میں ہیں اور اب آپ اور پرویز الہی، یہ پرویز الہی کیسے مقبول ہو گئے؟ او بھائی میرے خدا کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اس دوران آپ نے چھری مار کے جو بندہ آپ کو ناپسند ہے، میرا پیو ماریا ہے وہ صاحب نے ایک یعنی کریٹیسزم میں، یعنی کہ کوئی بات ہوگی میں تو ہر بات کو بھائی میرٹ پہ دیکھتا ہوں. ایک یہاں ٹھہرو نا، آرام سے چلو، آرام سے پلیز فار گاڈ سے. ٹھیک ہے سر. پہلے میرا نقطہ کیا تھا؟ تازہ ترین. ہاں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہرگز تازہ ترین نہیں ہے. اس سروے کے بارے میں سب سے پہلا فگر اسی سروے پر مبنی اس بد نصیب نے اسی پروگرام میں آپ کی موجودگی میں ریویل کیا تھا. اسد صاحب خدا کے لیے ذرا دکھائیں اور انہیں چونکائیں اور انہیں بتائیں کہ پلیز تازہ ترین کے نام سے گمراہ نہ کریں. اچھا سن لیں آپ کو کیوں اندازہ ہوگا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ کیا ہے. سنائیں جی صاحب، میں نے بھی داستہ کرو یار. ان لوگوں تک رسائی حاصل نہیں ہے جن کے پاس سب معلومات ہوتی ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ سروے کروایا ہے تو ان میں ان کی مقبولیت جو ہے، کن کی؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی، اس وقت وہ جن حالات میں ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی اس وقت مقبولیت پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں 2 پوائنٹ زیادہ ہے. یہ میں آپ کو وہ لیپ ٹاپ بانٹ کے تھک گئے. بھیا میں تو تمہیں سروے کے نتائج بتا رہا ہوں، وہ چاہے کسی نے گھڑے سروے کو افغانستان تو نہیں ہوا ہے نا، بس سرکمسٹانسز تو آپ صحافی ہیں، سرکمسٹانسز تو انالیسس کریں نا. آپ کو سامنے میں پیپر رکھ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہو یار تسی جو بھی کہہ لو، چودھری ڈٹ کے کھلو. آپ کو پہلے سے پتا تھا؟
मुझे भाई इसलिए पता था। मैं नाजरीन को भी बता दूं ना सर्वे में क्या कहता है। सर्वे जो बात इन्होंने की मैं मतलब हैरान कर दिया मुझे। आप ओ भाई 2 महीने आपकी पहले मौजूदगी में की है यार, खुदा का वास्ता। वो एनीवे यही सर्वे भी यही कहता है जो उन्होंने 2 महीने पहले कहा था। शहबाज शरीफ की मकबूलियत है जी 35% और परवेज इलाही साहब की है 37। उफ माय गॉड, 2 आपने भी कहा था कि 2 नंबर ज्यादा है जी भाई साहब, वो यही सर्वे था। ये मैं तुझे तो नहीं कराया। अगर आपका मसला ये है कि आपको वही जो मैं कहता हूँ, आपका एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। आप करते हो काता और ले दौड़ी, ये उर्दू का मुहावरा है। इसका मतलब है बंदा कालीच होता है, हमेशा जल्दी में होते हैं। एक तो मुनीर नियाजी हमेशा देर कर देता हूं मैं ना, आपका ये है कि आपको जल्दी कर हमेशा जिस भी चीज की तरफ आ रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने ये सर्वे को आज रिवील किया है दी न्यूज में, यही है जी ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो खुद लिख रहे हैं द सर्वे डन बाय गैलप फॉर अ पॉलिटिकल एंटिटी, सर एक सियासी इकाई स्लैश या शख्सियत एंटिटी, यही हो सकती है ना? ठीक, तो किसने करवाया सर्वे? मैं क्यों बताऊं? इसने इनकी ऐसा मुस्कुराहट मारे बता रही कि है कि- मैं अपनी सोर्स खराब करा। ये सर्वे जो है ये 10 से 30 जून के दरमियान हुआ था, 10 से 30 जून के दरमियान। तो जब इसके नताइज मुरतब हुए तो मैं गुनाहगार, जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ना कि यूं करके आपके मकबूल, आपके प्यारे रहनुमा 60% पे सबसे नुमाया He है is. और नंबर 2 साद रिजवी हैं। इस तरह बनाया हुआ ना ग्राफिक, ऐसा है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है ना? ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखने के बाद इस प्रोग्राम में हिंट सिर्फ इसलिए किया था कि उस वक्त जिक्र हो रहा था परवेज इलाही साहब का। सो यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। ठीक है, समझ गया मैं। समझ आ गई? हाँ, बिल्कुल पहुंच इसलिए कि जब आपका किसी दोस्त के साथ ये वादा हो कि भाई साहब ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये मेरे लिए है, तो आप जो कहते हैं ना मेरे चेहरे पे शैतानी टाइप की मुस्कुराहट आई, वो इसीलिए आई कि जिन साहब ने या जिन लोगों ने ये सर्वे कमीशन किया था, मुझे उनका भी इल्म है। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। जी आप बताइए। नवाज शरीफ जो वतन वापस आने को भरपूर पर तोल रहे हैं, उनका तो इसमें जिक्र इस वो तरह है, नहीं सब आता पढ़ते ना। ले अरे आते। यार, पर मसला ये आप पढ़ते नहीं है। चलो अब मैंने इतनी डिटेल से पढ़ के उतनी तुम्हें 4 लाइन बताया। पढ़ ली हैं, वो जिन्हें सारा सर्वे पढ़ा उनको क्रेडिट ही कोई नहीं। प्लीज सर, फिर वही अब ऐसे। मेरा सवाल तो ओ यार अच्छा, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं सवाल पूछने के लिए हूँ, और सवाल सुनेंगे आप? जी नवाज शरीफ जो हैं, जो पर तोल रहे हैं और जिनको आपने गाइड कर दिया है कि भाई तुम्हारे पास तो अग्रेसिव बयानी के अलावा चारा ही कोई नहीं है, एंड ही इज कन्विंस्ड कि मैं अग्रेसिव बयानियां लेके आऊंगा। वो तो 5वें नंबर पे पहुंचे ना यार, हम कब नहीं, तक एक दूसरे के साथ ये बात रगेदते रहेंगे कि आपने गाइड कर दिया, फिर मैं रोजाना कहता रहूंगा कि मैं 2 टके का रिपोर्टर कैसे गाइड करूं? ठहरो एक मिनट। सर्वेस को जब भी हमेशा डिस्कस करते हैं ना सर, तो उसमें 2-3 बातें जहन में रखी जाती हैं। सियासत के बारे में एक लफ्ज कहा जाता है कि एक दिन सियासत में बात औक़ात सदियों से बड़ा होता है। वाह, एक दिन कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि वो जैसे 9/11 एक दिन था ना, एक दिन था। इट चेंज द होल वर्ल्ड। वही आप वाशिंगटन से यूं दोस्तों के साथ आखिरी वक्त तक यूं उस जहाज की सीढ़ी पे खड़े होते थे, हाँ जी क्या हाल है यार, अच्छा बस ठीक है, वैसे कॉल होगी, आप कॉफी पी रहे हैं, कप लगा रहे हैं, द होल लाइफ इज चेंज्ड। हो गया ना 9/11 एक दिन। इसी तरह अब ये सर्वे जो है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं 10 से 30 जून के दरमियान, ये सर्वे एक और मेरी बात को जो है वो दुरुस्त साबित करता है। वो क्या? वो ये है कि मैं लोगों को बार बार कहता रहा कि ये जो कैदी नंबर 804 होते थे, जो गालिबन अब हवालाती नंबर 69 हो गए हैं, चेयरमैन अडियाला तरीके के इंसाफ, बाद। द मोस्ट वो- पॉपुलर लीडर राइट अरे नाउ इन सुनो तो पाकिस्तान। सही ना यार, द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर ऑफ दिस कंट्री अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। अच्छी हो गई आपको तसल्ली। तो उसमें ये था कि आम तौर पर ये बात कही जाती थी कि इनकी मकबूलियत का बेसिक वजह ये है कि टक्कर गए ना एस्टेब्लिशमेंट में। ऑफ कोर्स, प्रूव्ड। अच्छा, मैं रिपीटेडली कहता रहा कि नहीं, ये वजह नहीं है। वजह है महंगाई, 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 जो पीडीएम ने की 16 महीनों की हुकूमत के साथ अब अवाम जो है उस महंगाई का बदला लेना चाहते हैं। नसर साहब, आप पाकिस्तान की तारीख के आधे खुद गवाह हैं। जी
اس ملک میں مہنگائی کب مسئلہ نہیں تھا. چینی کی قیمت بڑھی, میں نے ایک پروگرام کرنا تھا, میں نے 1965 کے اخبار نکال لیے جی, اس میں بھی ہیڈ لائن سپر لیڈ لگی تھی اچھا, کہ چینی کی مہنگائی سے بہت سارے لوگوں نے سر اور جب سن سے لینا, اب پاکستان بات کر لی نا او بھائی میرے, جب بھی کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے صاحب, انتقال ہو گیا قائد اعظم کا تو گورنر جنرل بنے کون؟ خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین وہ جن کے گھر میں ڈھاکہ میں پاکستان مسلم اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا اعلان ہوتا ہے 1906. اس کے خانوادے کے چشم و چراغ جناب خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرل بنتے ہیں قائد اعظم کی رحلت کے بعد. دوسرے گورنر جنرل پاکستان کے. ٹھیک, اب ان سے جان چھڑانی تھی کیونکہ ایک تو بنگالی تھے, دوسرا سیاسی طور پر بہت زیادہ ذہین و فطین تھے. بھائی جس کے گھر میں, جس کے خانواندے میں, جس کے گھر میں مسلم لیگ کا قیام آیا ہو اور جداگانہ وطن کا قیام آیا ہو تو کچھ نہ کچھ تو یہاں ہوگا نا. ان کے بارے میں پہلے مشہور کروایا گیا کہ پیٹو ہیں بہت, جی کھاتے بہت ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, امریکہ کے ساتھ ہم نے فٹ ہونا تھا, اس کی گنجائش نہیں نکل رہی تھی. ہمارے ہاں گندم نہیں پیدا ہوئی اس وقت, قحط سالی ہو گئی تھوڑی سی, حالات ایسے تھے کچھ. 1949 جی, تو قائد ملت کہا جاتا تھا لیاقت علی خان صاحب کو, جو ان دنوں کیا تھے؟ وزیر اعظم. وزیر اعظم. تو گورنر جنرل کا نام دیا گیا قائد قلت, کیونکہ آٹا نہیں تھا. اور یہ قلت بڑی, ہنگامہ ہوا تو ٹک کر کے امریکہ کے ساتھ اسی مکمکا کرنا شروع کرتا 51 تو. اللہ. تو مہنگائی اسی طرح. میں بہت عرصے تک اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ جی وہ چینی کی قیمت بڑھ گئی تھی تو ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور ہم بھی بڑے وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ سڑک پہ آ گئے اسکول اسٹوڈنٹ. بعد میں پتا چلا کہ یحییٰ خان وانٹڈ ٹو ٹیک اوور. یہ کتاب میں نے, یہ گلطاف گور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ ارشد سمی صاحب جو کہ اے ڈی سی ہوتے تھے, ان کی کتاب بھی اویلیبل ہے. آپ نے تاریخ کے پنے پلٹ سو یحییٰ خان وانٹڈ ٹو ٹیک اوور. اس کے لیے اس کو چاہیے تھی ایک موومنٹ اور اس کو بڑھاوا دیا گیا. بالکل اسی طرح جیسے اب میں یہ سیریسلی اس پہ میں سوچتا ہوں کاش کہ کبھی کوئی چیزیں, ہمارے ہاں تو مصیبت ہے کہ جو گیم لگاتے ہیں وہ کتابیں لکھتے نہیں ہیں. جیسے افتخار چودھری جو ہے, اس کو کیانی نے آگے کیا تھا کہ پیجا مشرف کو جان چھڑانی, وہ کوئی ہیرو شیرو نہیں سی, اخیر تر سلام دا بوئی سی. نہیں, انہوں نے ایک وکلا تحریک بنائی. او یار چھوڑو نا وکلا تحریک, باقی اگر یہ جمہوریت کے نام پہ تھی تو یہ ہونا تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں بحال کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جی اچھا پہلے, اور سنو میری بات, نہیں اب یہ سنو, کیا یہ طریقہ نہیں کہ جناب اعتزاز احسن اور نواز شریف یہ دونوں گجرانوالے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا پکی گل ہے تو چودھری اعتزاز احسن جمہوریت کا بہت بڑے چیمپئن, کہتے نہیں پہلے جنرل کیانی فون کرے تو پھر بننا گے. ہوا ہے یا نہیں, کیا جنرل کیانی نے فون کر کے کہا تھا یا نہیں؟ یہ تو گجرانوالے سے بڑی اٹیچمنٹ ہے سر. آپ کیا بات کرتے ہو یار, لیکن گجرانوالے کو تو مان لے آئے. خواجہ آصف نے بھی کل کہا ہے گجرانوالے کوئی ملاقات نہیں. او خواجہ صاحب جان دیو, میں مجبور ہو گیا, ایڈ نہ کرو. خواجہ صاحب کی وجہ سے پہلے ہی ایکسٹینشن ہوئی تھی, یاد ہے نا, ساری پیغامبری ان کی تھی. سیالکوٹ سمبڑیال کنیکشن, ملک احمد کا بھی ایک بڑا کردار. ارے نہیں, ہاں کہیں نہ اعجاز احمد, ہاں سسر مبارک, نہیں بس سیالکوٹ سمبڑیال تے بھائی جان. وہ میں ایویں فارم ہاؤس کا نام لے کے گجرالے تو پہلے آندا جی نہ کرے کرو خواجہ صاحب, نہ کرو. آپ خواجہ آصف صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, خبر نکالتے ہوئے میں آب حیات بھی ابال کے پیتا ہوں. بس یہ دیکھیں ہاتھ بندے ہوئے. اچھا آگے, ٹائم میرے پاس کم ہے, مجھے 30 سیکنڈ جواب دیں. وکلا کی تحریک نے جمہوریت بحال کی اس ملک کے اندر, ماشاءاللہ ایسی جمہوریت بحال کی. ہر تیسرے دن او جو ایک آنکھ سے انصاف جو تو بڑا ٹھیک سی, ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ سن, ایک افطار چودھری, دوسرے دشمن اور دوسرے ایک آنکھ سے دیکھتے تھے. ہر قومی اسمبلی کے رکن کے بارے میں چور لٹیر اور جعلی ڈگریوں والا یہ تاثر کس طور میں پھیلنا شروع ہوا؟ اسکوڈ نوٹسز. اور کیا ہوتا تھا, آپ ٹی وی اسٹیشنوں پہ فلموں کی طرح یوں کر کے نا ڈگری جعلی اور دو
आगे बढ़ते सर, रुको, 342 इस पे डिपेंड, लेकिन मेरा एक अपना opinion है कि बुगला तहरीक ने कहीं कंट्रीब्यूट किया, पर लीडरशिप गलत हो सकती है, वो तहरीक गलत नहीं थी, लीडरशिप के अपने मसला है ना सर। नहीं, तहरीक रियासत होगी माँ की जैसी बन गई। हो गया ना सर, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। अम्मी की आपने बोर्ड कहा, में बैठे हुए हैं आजकल। पहुंच गए सर, आपने कहा मैं महंगाई पे बात करते हुए मैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट में आता, आपने कहा था कि ये नैरेटिव बिकेगा। ओ भाई, इस मुल्क के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाइड नैरेटिव है। वोट को इज्जत दो का नारा किसने लगाया? हजरत नवाज शरीफ ने। फिर कहा कि एहतसाब करो, हजरत नवाज शरीफ। वो इस मुल्क के अंदर आज अगर तो चेयरमैन फिर तहरीक इंसाफ पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आप कैसे ही कह सकते हैं पाकिस्तान की तारीख को अदनान जानते मेरे हुए भाई, कि महंगाई। अदनान मेरे भाई, इस सब्जेक्ट को कि इसको हमने जेरे बहस लाना है, ये फैसला कतन आपका है। मैंने आपको कहा आप तैयार करते रहे ना, मैंने कोई इसके लिए होमवर्क किया। सुन लो ना, क्या जो फैक्ट है फैक्ट है। सबसे पहले मैं हंसता रहा, आपने जब 4 मरतबा ताज़ा तरीन की मधानी भेड़ी। अब मुसीबत यह है कि आप खुद अपने शो में जिसमें आप खुद मौजूद होते हैं, अगर आप उसको याद नहीं रखते तो मैं क्या करूं? इतनी उन याददाश्त भी नहीं जी, रही। तो मैंने वो क्लिप रख ली। ठीक है जी, मैं चुप हो गया। मैंने असद को कहा चुपके से, मैंने कहा इसको एक्साइटमेंट में होने दो, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्शन इटसेल्फ आ गई ना। अगर तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिक रहा है तो फिर ये 88% वाला फिगर गलत है, अप्रूवल रेटिंग। सीधी साधी, मैं तो तुम्हें मंतक के तालिब इल्म की तरह बात कर रहा हूं ना, तो मेरी बात मान लो। महंगाई, पीडीएम पे गुस्सा कि भाई आप क्या लेने आ गए, और पीडीएम को सलाम। Then why 60% for the chairman Tehreek Insaf? He is on the top and Nawaz Sharif is on position 5th. भाई लोग सीधे, अल्लाह बख्शे मेरी माँ मरते दम तक ये कहा करती थी, पुत्र भावे जो मर्जी कहो, अंग्रेज का जमाना बहुत अच्छा सी, सस्ता सी। और तुहानू पता जिदों को नजायज कतल हुंदा सी ना, ते एकदम नेरी आंदी सी। हुण ते तुहानू पता बरकत ही उठ गई, सारे चोर आ गए। जो भी गुजर गया होता है ना वक्त, वो अच्छा लगता है। 60% की पॉपुलैरिटी खतरनाक तो है नवाज शरीफ के लिए। और इसलिए कि वो, अरे उनको कितनी ओपन फील्ड मिली जब उन्हें निकाला गया। उन्होंने पहला क्या बयानिया बनाया कि मुझे अमेरिका ने निकाला, सीधा वैसे अमेरिका उनका हर बयानिया बिका। ऐसी तो वैसे अमेरिका ने लड़न यानी मरने फिरने उन्हें। आपको पता है ना, दूसरी आलमगीर जंग में एक बंदा बहुत परेशान था बेचारा, कमी गमीन उनमें से था। उन्होंने कहा बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं सुना कि हिटलर बहुत गुस्से वाला था, मुंडा मेरा भी बड़ा दिखा है। बेचारा सिपाही भर्ती होके क्या हो रहा, ठीक है ना। तो एक पहले वो चला, उसके बाद जब वो खड़े होकर ललकारते रहे कि गैर जानबदारी तो जानवरों का काम है, क्योंकि वो ऊपर बाजवा साहब को मजीद एक्सटेंशन चाहिए थी, वो भी गेम कर रहे थे। उसका भरपूर फायदा उठाया उन्होंने एक बयानिया बनाया कि पै गया जी लीला करके, पहले अमेरिका नू, उसके बाद 9 मई के बाद जरा थोड़ा सा बुखार शुखार। लेकिन 60% 9 मई के बाद है ना सर। अगर वो टॉप पे है तो इलेक्शन तो वही जीतेगा। 10 नहीं, ये 10 से 30 जून के दरमियान है। और इसमें देखिए, मैं फिर वही आपको कह रहा हूं, मैं ये कि नहीं कह रहा कि हालात बदल जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा भी क्वालिटेटिव जो है, देखो 3-4 चीजें आपको ये चॉइस दी जाती है कि आपके पसंदीदा लीडर कौन से हैं। वो जो फहरिस्त दी जाती है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ही नहीं है, बेचारे 2% कह दें लोग। अच्छा, इस सर्वे में नहीं है उनका नाम दिया ही नहीं गया। ये तो जाती, लेकिन अगर हम फिर भी सुन तो लो ना, बाकी को एनालाइज करें ना और सर, बाकी मैं वही कह रहा हूँ ना। अब बाकी में भाई निसाद रसूल से टाइम कम है मेरे पास। हॉट फेवरेट आपने बनाया हुआ है नवाज शरीफ को, वो 5वें नंबर पर है। यार मैंने कहाँ बनाया, मैं तो फिर दोबारा तुम्हें कह रहा हूं कि वो तो अभी उतरा ही नहीं यहाँ पे। अगर वो उतर के उन्होंने अपना को चूरन भेज दिया तो फिर देख लेना सर्वे क्या करता। 60% का कैदी अगर जेल में रहा तो ये 80% पे पहुंच जाएगा। अगर वो आते ही गिरफ्तार हो गए, फिर कौन? नवाज शरीफ भी, और उनके खिलाफ एहतसाब के नए 3 मुकदमे हो गए। फिर ब्रेक, हाँ, फिर ब्रेक ले ले, मेहरबानी ब्रेक ही ले लो, तो बाद ब्रेक ही बन दी। थैंक यू। वेलकम बैक नुसरत साहब। देखें, अक्लमंद लोग, दूर अंदेश लोग, अरे किसी भी कौम का असासा होता है। जी बात सुनिए मेरी, जो भी आप माशाल्लाह बहुत इल्म और फजल से भरपूर आप लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं,
अब मैं समझता हूँ आपने लास्ट जो है ना, हमें देखो इस तरह वो तश्नगी रह जाती है और देखने वाले गिला करते हैं कि जी आप एक मौजू उठाते हैं टक टक करके और अपनी लड़ाई में आप वक्त ज़ाया कर देते हैं और कहीं आप कंक्लूड, वो यार उनका हक है, मुझे आए हैं ना, तो उनका हक है बाबू, उनका हक है। जो इस वक्त हमें देख रहा है, एक तो उसको भी दोबारा सलाम, जिन्होंने हम पे 56 लोगों ने एतमाद किया, उन पे भी तो है ही है, लेकिन जो इस वक्त बैठ के मुझे 56% उनको भी सलाम। और ये मुझे 3 जगह से आया मैसेज। ठीक है, मैं अर्ज ये करना चाह रहा, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये कि अगर फर्ज करें कि मैं कैसे कह रहा हूँ क्वालिटेटिव चेंज आ सकती है, क्वालिटेटिव चेंज यूँ आ सकती है कि मियाँ साहब लाहौर उतरते हैं 21 अक्टूबर और वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और चलो उनकी अगर हिफाजती जमानत भी मंजूर हो जाती है तो चंद दिन बाद फर्ज करो उन पे एहतसाब के को 3-4 अलग से केस बन के दोबारा कहें। मिसाल के तौर पर 18 जुलाई 2018 को वो उतरे थे ना, अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के मरियम समेत। अगर वो ना उतरते तो क्या तुम वाकई समझते हो कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस के बावजूद वो रिजल्ट आते जो आए थे? मुझे मतलब यहाँ इस हवाले से मैं पता नहीं, ये बात शायद कभी किसी ने की हो, ऑफ कोर्स बाखबर सहाफ़ी बहुत हैं और हम मैं भी थोड़ा सा फैज़याब सहाफ़ियों में शुमार होता हूँ, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फैज़याब सहाफ़ी रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान पहला क्लैश कब आया था? जनरल फैज़ ने बहुत सर्व किया है, लगभग 18 साल बहुत ज्यादा अंडर बाजवा साहब के साथ। पहला बड़ा इख्तिलाफ उनका कब आया था? नहीं, मेरी दोनों 26 जुलाई की शब बड़े गुस्से से फोन गया, 26 जुलाई 2018। अरे वाह। तो उनको फैज साहब को बुलाया गया कि बाजवा साहब ने मिलना है आपसे। फैज साहब बड़े खुश थे कि मैंने तो काम तमाम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बनी गाला में बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। लेकिन वो बड़ा हैरान कुल लम्हा था जब बाजवा साहब बड़े गुस्से से, पंजाबी बोलते थे, एक ही की सारा खोते ही खूज पाते। यानी ये वो मेरे वाली बात के 30 सीटें कैसी आ गई? टोन टेम्पन सुनिए। हाँ। सर क्या अब सारा कुछ सेट हो गया, खे सेट हो गया। इज द इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? उसने कहा हाँ हो जाएगा। उन्होंने कहा तू पते मिलाएगा, जोड़ तोड़ करेगा, सेटिंग करेगा, देन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने गुस्से से कहा, क्योंकि इमरान खान के पास वो नंबर नहीं थे कि वो उस वक्त वजीर आज़म पाकिस्तान। बिल्कुल, और पंजाब में तो हुकूमत बनना। दूसरा गुस्सा क्या था, वो जेल च बैठा है तो नून लीग सीटां किवें लैगी? तू तो कहंदा से पंजाबी च, तू तो कहंदा से नवाज शरीफ तमाजी हो गया, तबाह हो गई नून लीग, खत्म हो गई, सफाया हो गया, देन कैसे इतनी सीटें वो मैनेज कर गए? तो अब फैज का जवाब क्या था, जनरल फैज साहब का? उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था ना कि इसको जेल में न डालें। ही इज वेरी इंटेलिजेंट जनरल फैज। बस नवाज शरीफ का उस जेल में रहना वो आरटीएस बैठने को भी तबाह कर गया। पूरा सिस्टम लगा, नून लीग को अगर सहारा दिया तो उस नवाज शरीफ की गिरफ्तारी ने और जेल में रहने नहीं दिया। आज मैं ये बात, ये फार्मूला इमरान खान पे अप्लाई करता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर जेल में रहे, नुसरत जावेद साहब, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त मुशाहिद साहब ने उस दिन एक हवाला दिया था, अब्दुल्ला गुल वाला और शाह महमूद कुरैशी, ये 60% जो सर्वे कहता है ना, ये 160 हो जाएगा। हो सकता है। मैंने आपको 2018 की मिसाल दे दी है ना। आपने देखो, आपने जितनी बात कही मैंने आपसे डिसएग्री किया, आपकी खबर पे क्वेश्चन किया मैंने, बल्कि सराहा है, और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं उस पे बतौर रिपोर्टर मेरे पास सवाल करने की गुंजाइश ही नहीं बनती। अल्लाह भला करे आपका। तो वही फार्मूला यहां भी लगाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर जेल में रहे, जो कि रहेंगे, वो खतरनाक होते जा रहे हैं, दिन ब दिन होते जाएंगे। अब आ जाते हैं महंगाई। इसमें यह है, पीटीआई के वोटरों की आधी तादाद का कहना है कि भले इमरान खान पार्टी के सदर न रहे तो वो फिर भी पीटीआई को वोट देंगे। भला करे आपका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा टाइम कम है, प्रोड्यूसर बार कह रहे हैं जरा महंगाई पे आ जाए। मैं देखें महंगाई के बारे में नहीं, उस पर मैं मेरा जरा सुन लें, सवाल सुन लें, आपको यकीनन उस पर गुस्सा आएगा। मैं जिस तरह आप जैसे अब यानी हर चीज फर्ज कर लो, यकीनन गुस्सा आएगा। चलो जी, चैलेंज करते हैं आप और मैं मिलकर नुसरत जावेद साहब को। नुसरत साहब, ये तो मानते हैं ना कि दूर अंदेश लोग कौम का सरमाया होते हैं,
माशाल्लाह। और जब वो खदशात का इजहार वक्त से पहले कर दें तो समझदार कौमों की तरक्की का राज उसमें होता है कि समझदार कौमें कबल अज वक्त खदशात पर प्रीकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं। तो हमारी जो वजीर खजाना है, निगरान वजीर खजाना मतलब देखें ना, उन्होंने कहा है कि बेयकीनी की जो सूरत हाल है यार आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट, मतलब आप आई कुडंट कंट्रोल माय सेल्फ ना, मैं आई एम सॉरी, और मैं देखने वाला से अच्छा खैर, हमारी निगरान, आप ना माने, हमारी निगरान, उन्होंने खदशात जो खदशात बता दी, आप खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको एक पढ़ा लिखा निगरान वजीर खजाना मिला है। जी जी सही बात। जो बैंक को समझता है, जो देखें आपके मुआहदे होते हैं मुख्तलिफ बैंकों के साथ, IMF क्या है, मालियाती इदारा है, तो एक एक्सपर्ट अगर आपके पास आ गया उसकी कदर करें। आपने उनमें ऐप निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है कि ये जो बेयकीनी नुसरत जावेद साहब जैसे लोग पैदा करते हैं इकोनॉमी को लेके, रुपए की गिरावट को लेके, इकोनॉमी को लेकर रुपए की गिरावट को लेकर अनसर्टेनिटी की बात कर रही है, वही मतलब इन अदर वर्ड्स ये फर्क है यार, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, वैसे तो ना करो ना। की फर्क है दसो? ओ बाबा, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है। नो सॉरी, आई एम टेलिंग अबाउट द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उसकी आप जिक्र करते हैं ना, रुपए की गिरावट को लेके और इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके, इम्प्लीमेंटेशंस को लेके आपने कई दफा कहा ना, मैं अभी आपसे करूंगा आपको बीपीआई हो जाएगा, जी डॉलर स्टेबल नीचे आ रहा है, रुपया स्टेबल हो रहा है, जी जी, हैं? उसमें नॉर्थ साहब का कोई ताल्लुक नहीं, चले आगे। हाँ। मेरे ख्याल में मेरे पास सवाल नहीं है। हुजूर, बात यह है कि ये जो दूर अंदेश अफराद होते हैं ना, ये मौसम का हाल नहीं सुनाते कि जी नाज़रीन, नक्शे के मुताबिक मगरबी हवाएं चल रही हैं और जब वो आएंगी और कोई हिंदू का शोरी हो, वो इस तरह नहीं करते। दूर अंदेश लोग बताते हैं कि ABCDEF। इन्होंने आज जो असल बात की है कि देखिए आजकल जो डॉलर की कीमत जो है वो गिर रही है, रुपए की कद्र जो है वो स्टेबल हो रही है। खुदारा इसको ये मत समझिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, अब इट इज़ हियर टू स्टे। यही मैंने कहा था, आगे चलिए। ठीक है ना जी। तो ये तो इन्होंने एक मौसम का हाल आपको सुना दिया। अब इतनी ज़हीन और फतीन खातून के लिए इंतहाई ज़रूरी था सर कि वो इसकी वजह भी बता देती क्या है, और वो वजह बताते हुए एक इंतहाई एम्बिगुअस, गुमराह कुन किस्म की या पेचीदा किस्म की या नीदर है नॉर देयर किस्म की वजह बयान कर रही कि बेयकीनी। बेयकीनी किस चीज़ की? ठीक, सियासी बेयकीनी, माली बेयकीनी, मार्केट में इतना फ्लक्स। खुद फरमा रही हैं कि रवां साल 20 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, ये इसी के अंदर। ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक है। अब वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए जो हिसाब किया है उसमें कहती हैं पाकिस्तान को 2 तरफा डॉलर से यानी बायलैटरल 11 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। तो 9 अरब डॉलर का तो खसारा आ गया ना? आ गया। अच्छा, उन लोग तो करना है। चीन से भी फाइनेंसिंग की तवक्को है। पूरे हो जाएंगे। भाई क्वांटिफाई तो नहीं है ना भाई, उधर क्वांटिफाई बोल। और बाबू सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें बताऊं कि जो लोग वाकई इकोनॉमिक्स को संजीदगी से पढ़ते हैं उसके बारे में लिखते हैं, उनमें से एक साहब है मेरे सबसे अजीज तरीन, खुर्रम हुसैन साहब। लिमिटेड ग्रोथ, जैसे लिमिट्स टू ग्रोथ। शहबाज राना है, वो बड़ी मेहनत से करता है, ये उनसे संजीदा, और ये प्रोफेसर भी हैं, ये पढ़ाते भी हैं, इनकी और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। ये उन्होंने डॉन के लिए आज आर्टिकल लिखा हुआ है, और इनका आज वाला जो है कोई नया थीसिस नहीं है। वो ये है द लिमिट टू ग्रोथ, के तरक्की की हद। समझ गया। जैसे मुनीर नियाजी का शेर था ना, सपने की भी हद थी, आखिर अपनी हद से आगे जाता कैसे। तो जब सपने की भी हद होती है तो ग्रोथ की, नमू की भी हद होती है। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हालांकि सपना तो बेहद होना चाहिए। मुनीर नियाजी का कमाल ये था। अब खुर्रम साहब ये बदस्तूर के चले जा रहे हैं। वो इन्होंने अपने कॉलम का आगाज ये किया, उन्होंने कहते हुए उन्होंने कहा जी लोग मुझसे शिकवा करते हैं, जैसे आपने मुझे बदनाम किया है, कि जब भी मैं लिखता हूँ मैं जी बुरी खबर ही बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनका एक पुराना थीसिस है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अफरात ज़र का और पाकिस्तानी रुपए की कीमत का बुनियादी सबब ये है कि हमारी जो करेंसी है, हमारी
हुकूमत रोजाना नोट छापती है, ये नोट वो बैंकों को देते हैं, बैंकों से फिर वो कर्ज लेते हैं। हेलो, ठीक। तो इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक नेट। उन्होंने कहा कि असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ फिर वो ग्राफ्स वगैरह बना के तो वो बताते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रही, डॉलर नहीं सिस्टम में आ रहे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हत्ता के बसा औकात हमने जो नोट छापे होते हैं हम उनको भी ओपन मार्केट में फेंक कर तो डॉलर खरीदते हैं, तो बल्कि हम एक हवाले से डॉलर की कामयाबी का सबब बनते हैं। हाँ, वो डॉलर मार्केट से उठा लिया गया तो नायाब हो गया। ठीक कह रहे हो, आ गई समझ? आ गई। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने सबसे पहले स्टेट बैंक को फोरवॉर्न किया था 2021 में, और जिसमें वाकई इन्होंने किस्तों में 3-4 आर्टिकल लिखे थे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो स्टेट बैंक वालों, ये एक दिन हमें तबाह कर देगा। स्टेट बैंक बहुत गुस्से में आया और उन्होंने कहा जनाब आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने उस दिन वो जाहिर है कि कोरोना फैला हुआ था, और कहा ये तो चूंकि रजा कोरोना है, बाकर साहब का जमाना है शायद, वो भी IMF के आए हुए थे ना, नमून ने IMF बड़े चंगे काट के भेज दिया। बहरहाल एक्सपर्ट्स दे ब्रॉट अस हियर ना। नहीं मुझे अच्छा बताएं तो सही, हम अच्छा, अपने एक बात तो ब्रेक से पहले एक चीज वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा असल क्राइसिस ये है, और मैंने ये 2021 में भी कहा था, और वो ये कहते हैं कि यकीनन आज का डॉलर की कीमत जो है वो कम हो रही है, उसकी बुनियादी वजह एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कौन ले रहे हैं? अंडर द सुपरविजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, अंडर द सुपरविजन ऑफ निगहबान, जो जाके तो कंपनियों के बाहर खड़े रहे हैवी शलवार कुर्ता पहन के, ठीक है, ऐसे सिगरेट रख के, काली वेस्ट कोट भी पहना, काली वेस्ट कोट भी अगर जरूरत पड़े तो, हालांकि वरना पहचाने जाए ना, वैसे मेरा ख्याल है इतने सुपरवाइज हो गए उनके लोग ना पहचानना नहीं, जनसीला बन रहा है, ठीक है। एनीवे वो ये कहते हैं कि डेफिनेटली ये एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये, इसका इम्पैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? सुनो तो सही ना, इनका कहना है नहीं, वो ये कहते हैं कि ये पायदार इसलिए नहीं है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक पढ़े लिखे आदमी ने जो वजह बताई है वो पहले हम डिस्कस कर लें। वो ये कहते हैं कि यार हम करेंसी नोट छापते हैं, उसके मुकाबले में हमारे डॉलर्स नहीं आ रहे। डॉलर्स आने के 2 तरीके हैं, एक्सपोर्ट, अगर ना आए तो ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये फिर पायदार नहीं रहेगा। इसके लिए यही बात आपकी बिल्कुल ज़हीन व फतीन शमशाद अख्तर ने की। अब शमशाद अख्तर का जो है हमें मौसम का हाल सुनाना नहीं है, खुर्रम अगर जब ये बात कह रहे हैं तो उसकी वजूहात भी बता रहे हैं। अब आपकी अजीज तरीन वजीर खजाना को ये बताना चाहिए था कि ये देरपा नहीं है, लेकिन देरपा बनाने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ फौजी डिक्टेटर पसंद नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ सियासतदान विच ऐप नजर आते हैं, टेक्नोक्रेट्स में भी आप ऐप ढूंढ लेते हैं, तो मैं क्या कहां से लोग आए जो आप पे हुकूमत करें? लाजवाब कर दिया मैंने नुसरत जावेद साहब को। ऐसे करो एली दे बुकराते असल नु काट के वजीर आज़म बना दो, रौनक भी लगी रहेगी। मान लो मैंने आपको लाजवाब कर दिया। अरे यार इस लाजवाबी टेस्ट के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ऐसे खुद ही अपने वेलकम बैक। नुसरत साहब, एहतसाब बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन आजकल जो नैब तरमीम को उड़ाने के बाद जो उमरदा बंदयाल साहब कर गए, ठीक होना चाहिए एहतसाब, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये कुछ मिस मैच नहीं हो रही? वो सोच समझ के किया है, और बंदयाल साहब को पता था कि क्या लिखेंगे जवाब में, समझ गए बात को, तो उन्होंने अच्छा खेल के गए। बंदयाल साहब, आप माने या ना माने, उन्होंने मुसीबत तो डाल दी ना, जो गेम बनाई हुई थी किसी ने, उसमें गन तो पड़ गया। अब हमारे साथ जो मसला जो हो रहा है ना, जो अभी तक हम सारे समझ नहीं पा रहे हैं, को जैसे आपने सर पे में बताया कि सियासतदान सबसे गैर मकबूल 39%, यानी सियासतदानों के मुकाबले में हम, जबकि हमें तो पता है ना एक दूसरे की औकात का, हम कितने हैं? 56 है यार, 6 बहुत है भाई। दोबारा आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको लगता नहीं सियासतदान इस मुल्क का सबसे मजलूम तबका है? लिस्सी सामी हमारे शुरू से मुहावरा है कि लिस्सी सामी नू पै जाओ, और वो लोग जो इस मुल्क के पार्लियामान में बैठते हैं
وہ لوگ جو اس ملک کا قانون بناتے ارے بھائی آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ یقین مانیں اگر حالات یہ رہے تو میں تو مرمرا گیا ہوں گا. اللہ آپ کو زندگی دے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن اچانک پتہ چلے کہ محمد علی جناح نے جب دہرادون سے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے پاکستان بنانا ہے, اور وہ برطانوی فوج میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا. ایسا نصاب میں لکھا جا سکتا ہے اور لوگ اس کو پڑھ کے مان بھی لیں گے. مائی گاڈ. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اتنی زیادہ نفرت ہے. مطلب جیسے میں نے خواجہ ناظم الدین کا آپ کو سے ذکر کیا, دیکھیے وہ قائد قلت, اور انہی کے زمانے میں ایک اور تجربہ بھی ہوا تھا, وہ گورنر جنرل تھے. پنجاب میں پہلا مارشل لاء کا ایکسپیرینس لگا کے دیکھ لیا گیا تھا کہ حالات کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اینٹی ایمنیا موومنٹ کے چکر میں سمجھ گیا. سمجھ گئے بات کو. میں یہ جو آج کل ہم روزانہ بہت ذوق و شوق سے خبریں, مطلب جیسے ابھی نواز شریف اترے نہیں تو 3 کیسز تیار ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو سب ٹھیک, ہم جو بات ابھی تک اندازہ نہیں لگا رہے نا, جس سے ہمارے یار دوست خوش ہو رہے ہیں کہ یار ان کی تو فائلیں پہلے تیار تھیں, وہ بند ہو گئی, وہ کھول نہیں نا صرف, وہ کھل گئی ہیں. ان میں اب ضمنیاں نہیں ہونی, ان میں مزید تفتیش نہیں ہونی. یاد یہ کرو کہ نئے کیس کیا بننے ہیں, کام اس پہ کرو. I don't believe that. آپ خود کل 2 دن کہتے رہے کہ اچھے دن آ رہے ہیں, ریلیف اور نہیں, کیسے آئیں گے صاحب. میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے, جیسے آپ نے ابھی 26 جولائی کا ذکر کیا ہے, نیب کے ایک بہت بڑے آفسر نے دفتر میں بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جی میں تو پرویز الہی کے خلاف ایک چیز نہیں منہ بول دیا گا. آفٹر آل چودھری ہے, مقابلے لوہار کی بھیج دیں, ساڈا جٹ بھرا ہے چودھری. دس از a very, very highly firmly placed NAB officer saying in his office, while you مکہ مار کے ہیلو. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے نہیں, وہ بھی ریٹنگ لوہار دے نہیں سر, یار دے آر راجپوت. پھر وہی بچوں والی, خیر راجپوت شاجپوت تو نہیں ہے, کشمیری نظم. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں بھائی میرے, اور نہیں یار جو بھی ہوں گے آئی ڈونٹ نو. دا پوائنٹ از کہ دے ہیو نیور, انہوں نے کبھی اس بات کو, آپ ان سے سیاسی اختلافات کریں جو بھی, بٹ دیر از اے فیکٹ کہ میاں شریف اینڈ ہز فیملی اینڈ بردرز دے ریئلی ورکڈ ایکسٹریملی ہارڈ دن رات, اینڈ دین یو ریچڈ ہیئر. ایگری ود یو. صحت مند معاشروں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سراہنے کے قابل ہوتی ہیں کہ یار ایک بندہ یہاں تو نہیں, یہاں الٹ ہے کہ جی کبھی کبھی ان لوہار. آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز ارسل, فرزانہ راجہ, ان کے نام بڑے زور و شور سے لیے جاتے ہیں. یہ تو نام آتے رہتے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے بارے میں سوچو. آپ یہ خاور مانیکا کی گرفتاری سے چلو, کو سمجھ آ رہی ہے. نیب امینڈمنٹس کو بندیال صاحب نے اڑایا, جو کہ اپنی دانش میں تو انہوں نے جو حساب کیا تھا, لیکن آگے بھی تو بڑھے گی نا. تو کہاں جائے گی, جو کہتا رہتا ہوں یار تمہیں, کہیں وہ بندہ کس کے گھر جائے گا سیلاب وبا میرے بعد. خاور مانیکا کی گرفتاری سے ذرا شروع کرو نا. ٹائم اپ ہو گیا سر. چلو نالی اپنا ٹائم آپ کا بہت کر رہے ہیں. اور عظمت کو سلام کہ آپ نے ہم دونوں کو برداشت کیا. 3 دن اپنا بہت خیال رکھیے گا. ذرا سا مشکل ہے, اچھے حالات آنا, لیکن آ جائیں گے. اللہ حافظ.